Welcome to Academy of Earth Sciences. This is Akansha, and today we are bringing you a brand new series in which we will be solving the previous year questions of Assistant Hydrologist exam. In every video, we will be solving 10 to 15 questions with detailed solution of every question. So let's get started. Let's start with question number 1. The first question is, which one of the following minerals has highest susceptibility to weathering? And our options are olivine, pyroxene, muscovite and quartz. Okay, in order to understand this question and to answer this question, first of all we need to know what is Goldich dissolution series. So it is basically a series similar to Bowen reaction series, but here, as we can see in this diagram, the minerals formed at higher temperatures are least stable, whereas minerals formed at lower temperatures are more stable. This is exact copy of the Bowen reaction series, but there is a main difference in this, as olivine is least stable. That is, olivine is the first mineral to get weathered and quartz is the last mineral to get weathered. So the correct answer to this question would be part 1, olivine. Okay, let's move on to question number 2. The ridge-like deposits of silt and clay along the borders of flooded rivers after a flood are known as. Okay, we have 4 options: placer deposits, natural levees, scree and cuesta. Let's see all the options one by one. First of all, we have cuestas. Okay, what are cuestas? These are basically ridges or small hills where one side of the slope is very steep, as you can see in this diagram. This side is very steep and the other side is very gentle, and this is usually formed in rocks or terrain in which harder rocks or more resistant rocks are overriding the less resistant or softer rocks. As you can see, this sandstone is overlying shale. So we can see that this side has a very steep slope and this side has a very gentle slope. So this is cuesta, and there is no floodplain involved in this whole process, so this cannot be the correct answer. Moving to the next part. Okay, this is scree. Scree is basically loose rock fragments. As we can see these fragments of rocks, and they are loose. There is no cohesion between the sediments, and they are usually found under the base of a hill or a cliff. So this is also not the correct answer. Moving on to the next part. Okay, these are placer deposits. Placer deposits are basically deposits of very valuable minerals that are separated due to gravity. What happens? Heavy minerals get separated from their matrix due to erosion. This is the zone of weathering. Here the weathering is happening, and we washed down the slope and they are deposited in the stream here. And during this process, lighter minerals and heavy minerals get separated, and these heavy minerals are either deposited in the stream, or they are deposited on the beach, or they are deposited in the residual gravels. So this is also not the correct answer because there is no floodplain involved in this whole process. So our last option is natural levees. As we can see, natural levees are basically embankments on the both side of river. When a river is flooded, जब बाढ़ आती है रिवर में, किसी भी फ्लड आती है रिवर में, उसके बाद क्या होता है, दोनों साइड पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं. जैसे रिवर आती है उस फ्लड प्लेन के साथ फ्रिक्शन होता है. फ्रिक्शन की वजह से फ्लड जो रिवर है उसकी स्पीड कम हो जाती है, और उसकी स्पीड कम होने की वजह से वो अपने सेडिमेंट्स वहीं पर डिपॉजिट कर देती है. तो इस टाइप के रिजेस जैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं रिवर के दोनों साइड पे, उनको हम नेचुरल लीवीज कहते हैं. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी दिस, natural levees. So let's start question number 3. Which one of the following is not a sinkhole? So सबसे पहले देखते हैं सिंकहोल क्या होता है. सिंकहोल बेसिकली एक होल या फिर एक डिप्रेशन होता है ग्राउंड में, जो सरफेस लेयर्स के कोलैप्स होने से बनता है. अब देखते हैं कि उवाला क्या है. उवाला बेसिकली एक सिंकहोल ही है, लेकिन उसका साइज सिंकहोल से बड़ा होता है. एक कार्स्ट डिप्रेशन है जो सिंकहोल से बड़ा होता है साइज में. नेक्स्ट ऑप्शन इज पोलजी. पोलजी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सिंकहोल, बट वो कब बनता है, जब बहुत सारे सिंकहोल्स एक साथ कोएल्स हो जाते हैं, यानी कि एक साथ कोएलेसेंस हो जाता है सिंकहोल्स का. बहुत सारे सिंकहोल्स एक साथ मिक्स हो जाते हैं,
मिल जाते हैं तो उससे हमारा पोल जी बनता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज सोल्यूशन पैन। अब सोल्यूशन पैन क्या होता है, जैसे कि किसी एरिया में एक छोटा सा डिप्रेशन बन जाए, और वो बनता कैसे है, किसी भी जो बहुत ही सेलाइन वाटर अगर प्रेजेंट है किसी छोटे से होल में, तो वो धीरे धीरे वहाँ पे डिसोल्यूशन करता रहेगा और वहाँ पे एक होल बना देगा, तो उसको हम सोल्यूशन पैन कहते हैं। ये भी एक तरह से एक सिंक होल का एक टाइप कह सकते हैं, या फिर एक कह सकते हैं कि सिंक होल से एसोसिएटेड ही एक फीचर है। नेक्स्ट इज लैपीज। लैपीज में बेसिकली क्या होता है, किसी रॉक सरफेस में जब लाइमस्टोन इरोड हो जाता है या लाइमस्टोन का डिसोल्यूशन हो जाता है, तो इस तरह से एक ग्रूव्ड या फिर हम कह सकते हैं एक रिजिड टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, जहाँ पे हमें डिप्रेशंस यानी कि क्लेफ्ट्स और ये एलिवेटेड एरियाज को हम बोलते हैं पिनेकल्स, इस टाइप का एक सरफेस यानी कि एक ग्रूव्ड अनइवन सरफेस बन जाता है, उसको हम लैपीज कहते हैं। सो ये सिंक होल से एसोसिएटेड नहीं है, सो दिस कुड बी द करेक्ट आंसर। Now we have question number 4. Which one of the following is not related to glaciers? Okay, first option is Doline. Doline is basically a sinkhole, or we can say a flat surface depression, and it is usually found in karst topography, so it is not related to glaciers. So this is the correct option. But let's see all the other options and let us understand what how they are related to glaciers. Fern. Fern is basically recrystallized ice. जो पिछले सीजन की आइस, दिस इज फर्न, जो पिछले सीजन की आइस बच जाती है वो रिक्रिस्टलाइज हो जाती है नेक्स्ट सीजन आने पे, और वो फर्न फॉर्म करती है, तो वो फर्न कुछ इस तरह का दिखता है। The other option is circus. Circu basically एक एम्फीथिएटर की शेप की वैली होती है, as you can see here. एम्फीथिएटर की शेप की वैली है जो ग्लेशियल इरोजन से बनती है। And last option is drumlins. So drumlins are basically a spoon shaped, or we can say half buried egg shaped elongated hills. और वो कब बनते हैं, जब आइस जो है वो अनकंसोलिडेटेड टिल के ऊपर वर्क करती है या अनकंसोलिडेटेड टिल के ऊपर ट्रैवल करती है, तो वहां पर एक हमारी ड्रमलिन बनती है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. A graph showing percentage of Earth's surface as a function of elevation or depth related to sea level is called. Okay, first option is hypsometric curve. Hypsometric curve is the frequency distribution curve of elevations of an area. So this could be the correct answer. Moving on to the next part, stress and strain curves. Stress and strain curve is basically the variation of stress with strain. So these two cannot be the correct answer. Last is creep. Creep curve is the graph between strain and time. It basically shows the microstructural changes in a material. So all these three options cannot be the correct answer. So hypsometric curve is the right answer. Now we have question number 6. The process of sinking of material, the process of sinking to maintain isostatic equilibrium during cooling of the lithosphere is called. Four options: gravitational subsidence, thermal subsidence, continental rise, or extensional collapse. Okay, let us see all the options one by one. सबसे पहले ग्रेविटेशनल सब्सिडेंस है। ग्रेविटेशनल सब्सिडेंस बेसिकली ग्रेविटी के इफेक्ट से जो सब्सिडेंस होता है उसे हम ग्रेविटेशनल सब्सिडेंस कहते हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन है थर्मल सब्सिडेंस। अब थर्मल सब्सिडेंस में क्या होता है, जब मेंटल कूल होता है कंडक्टिव कूलिंग की वजह से, तो वो थिक हो जाता है, और थिक होने की वजह से वो एक लोअर एलिवेशन पे चला जाता है, यानी कि सबसाइड हो जाता है। हमें पता है आइसोस्टेसी में हमने पढ़ा है कि जो डेंसर मटेरियल्स होते हैं वो लोअर एलिवेशन पे मिलते हैं, और जो जिनकी डेंसिटी कम होती है वो हायर एलिवेशंस पे हमें मिलते हैं। जैसे हमने देखा है माउंटेन्स हायर एलिवेशंस पे होते हैं, जो कॉन्टिनेंटल हमारा क्रस्ट है वो हायर एलिवेशन पे होता है, और ओशनिक क्रस्ट थोड़ा लोअर एलिवेशन पे होता है। ये इसीलिए क्योंकि उनके बीच में डेंसिटी डिफरेंस है। तो जो कोल्ड मेंटल है वो ठंडा होने के बाद सबसाइड हो जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो वो थर्मल सब्सिडेंस, हम उसको थर्मल सब्सिडेंस कहते हैं। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी अदर ऑप्शंस आल्सो। ओके, कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज बेसिकली एक छोटा सा स्लोप होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप और जो डीप ओशनिक फ्लोर है उसके बीच में एक छोटा सा एरिया होता है, ये वाला, इसको हम कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं।
लास्ट ऑप्शन इज एक्सटेंशनल कोलैप्स। अब एक्सटेंशनल कोलैप्स में क्या होता है, ओरोजिनी के टाइम पे जब माउंटेन बिल्डिंग होती है तो एक हमारे पास थिकन्ड क्रस्ट बन जाता है, और जब वो थिकन्ड क्रस्ट धीरे धीरे स्प्रेड हो जाए, एक उसका लेटरल जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो जाए, और ये जो नीचे वाली रूट है ये थिन हो जाए, तो हम उसको एक्सटेंशनल कोलैप्स कहते हैं, क्योंकि अब इसकी जो एलिवेशन है वो कम हो गई है। यहाँ पे ये 3500 मीटर के एलिवेशन पे था, अब ये 1300 मीटर की एलिवेशन पर है, लेकिन इसका जो लेटरल एक्सपेंस है वो बढ़ गया, तो हम इसको कहते हैं एक्सटेंशनल कोलैप्स। और लेकिन इसमें कूलिंग का कोई रोल नहीं है, लिथोस्फीयर की कूलिंग का कोई रोल नहीं है, तो हम इसको करेक्ट आंसर नहीं कह सकते, तो करेक्ट आंसर वुड बी थर्मल सब्सिडेंस ओनली। Let's now start question number 7. Regions where continental lithosphere is currently undergoing extension or underwent extension in the past are termed as. Let's start with the last option, trench. So trenches are basically depressions in the ocean at a subduction zone. These are basically formed at convergent plate boundaries. As we can see in this diagram, you can see a depression here in the ocean. These narrow depressions are called trenches. These are the most deepest part of the ocean, and these are basically formed over the subduction zones and in the in the convergent boundaries. So this is not the correct option. Next we have abduction. Let me explain this with this diagram. Okay, let's understand abduction and subduction both. Abduction is when the oceanic plate overrides the continental plate during the convergence of ocean and continental plate. क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली हमें पता है कि ओशन की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है और हमेशा ओशनिक प्लेट जो है सबसाइड करती है और कॉन्टिनेंटल प्लेट ओवरराइड करती है। लेकिन जब उल्टा हो जाए, यानी कि ओशनिक प्लेट हमारी ओवरराइड करे और कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है सबसाइड करे, तो हम उसको कहते हैं ऑब्डक्शन। ये भी हमें कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री में देखने को मिलेगा, यानी कि कोई भी चीज़ पुल अपार्ट नहीं हो रही है, कोई भी एक्सटेंड नहीं हो रही है, इंस्टेड क्या हो रहा है, ये एक दूसरे के पास आ रही है, यानी कि यहाँ पे हमें कन्वर्जेंट बाउंड्री देखने को मिल रही है। ये हो गया ऑब्डक्शन। अब सबडक्शन में क्या होता है, ओशनिक प्लेट अगर सबसाइड हो जाए और कॉन्टिनेंटल प्लेट ओवरराइड करे उसको, तो हम उसे सबडक्शन कहते हैं। तो ऑब्डक्शन एंड सबडक्शन दोनों ही हमें कन्वर्जेंट बाउंड्री में मिल रहे हैं, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है रिफ्ट। अब रिफ्ट में क्या होता है, किसी भी कॉन्टिनेंटल और ओशनिक कोई भी लिथोस्फेरिक प्लेट जब स्प्लिट हो जाती है एक या एक से ज़्यादा पार्ट्स में किसी भी डाइवर्जेंट बाउंड्री पे, तो हम उसको रिफ्ट कहते हैं। जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सटेंशन हो रहा है, ये प्लेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और यहाँ पर जो है मैग्मा जनरेट हो रहा है, और यहाँ पे हमें एक नया नया ओशन बेसिन देखने को मिल रहा है। यानी कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक्सटेंशन हो रहा है, एक्सटेंशन की वजह से ये प्लेट दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गई और यहाँ पे हमें न्यू ओशनिक फ्लोर देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर वुड बी रिफ्ट। Next we have question number 8. Which one of the following margins represents plate boundaries? So plate boundaries और plate margins में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। प्लेट मार्जिन्स वो बाउंड्रीज होती हैं प्लेट की जहाँ पे दो प्लेट्स एक्टिवली इंटरैक्ट नहीं करती, यानी कि वो वहाँ पे मीट करती हैं पर वहाँ पे कोई एक्टिव इंटरैक्शन नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं मार्जिन। और जहाँ पे दो प्लेट्स एक्टिवली इंटरैक्ट करती हैं उसको हम बोलते हैं प्लेट बाउंड्री। तो पैसिव ओशन मार्जिन्स और पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स तो करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। एक्टिव ओशन मार्जिन्स के केस में हमें मिड ओशनिक रिजेस देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे भी हमें कोई बाउंड्री देखने को नहीं मिलेगी। तो बाउंड्री हमें किस केस में देखने को मिलेगी, एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स के केस में। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9. Which one of the following back arcs is commonly called Mariana type back arc? Okay, first of all let's see back arcs क्या होते हैं। back arcs basically back arc basin होता है एक, जो कहाँ पे बनता है, बैक आर्क स्प्रेडिंग सेंटर्स पे, और ये हमें मिलता है वहाँ पे जहाँ एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही होती है, यानी कि सबडक्शन जोन्स में हमें बैक आर्क्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब एक प्लेट सबडक्ट होती है, यानी कि ओशनिक प्लेट यहाँ पे हमारी सबडक्ट हो रही है, तो यहाँ पे मेंटल जो है वो मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, और मैग्मा जो है
यहाँ से सरफेस की तरफ आने लगता है। तो यहाँ पे जो मैग्मा ऊपर आ रहा है, ये मैग्मा एक बैक आर्क फॉर्म करता है। अब हमारे पास कंप्रेशनल बैक आर्क्स है, एक्सटेंशनल बैक आर्क्स है। कंप्रेशनल बैक आर्क के केस में क्या होता है कि जो ओवरराइडिंग प्लेट है वो बहुत फास्ट मूव करती है, वेयर एक्सटेंशनल बैक आर्क्स में क्या होता है, जो हमारी ओवरराइडिंग प्लेट है या तो वो स्टेशनरी रहती है या फिर वो ट्रेंच से अवे मूव करती है। तो ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है, मरियाना ट्रेंच में। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, एक्सटेंशनल बैक आर्क. Okay, let us start with question number 10. This is going to be the last question of this video. We will be solving the rest of the questions in upcoming videos. So, which one of the following is an ore mineral of silver? Let's start. First, let's see the last option. Cerussite. It is the ore of lead, PbCO3. Next, we have cassiterite. This is the ore of tin, SnO2. Next we have argentite. Argentite is the ore of silver. The formula is Ag2S. And arsenopyrite is iron arsenic sulfide. And the formula is FeASS. So the correct answer is argentite. Thank you guys for watching the video. If you like the video, give it a big thumbs up. And if you have any queries, you can write it in the comment section below. And subscribe to our channel because we will be posting content very regularly. So stay tuned and I'll see you in the next video. Goodbye.